Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the basic concepts of literary text analysis. And in this lecture, we will be discussing literary elements which are commonly used by the writers in their writing. And the most commonly used literary elements are the figures of speech. So in this lecture, we are going to discuss the figures of speech. Let's start the lecture. Figures of speech. What is a figure of speech? A figure of speech is a phrase or word having different meaning than its literal meaning. Figure of speech is used to add richness to the literal meanings of the word. Students, figure of speech एक ऐसा phrase या word होता है जिसके literal meanings इसके intended meaning से totally different होते हैं और ये किस लिए यूज किया जाता है in order to add richness to the text. अपने टेक्स्ट को रिच करने के लिए, अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इन फिगर्स ऑफ स्पीच के मीनिंग्स एक्चुअली डिफरेंट होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स को इस तरह से यूज किया जाता है कि इससे हम अपना मनचाहा जो है वो मीनिंग अक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंसेस, ही रन्स वेरी फास्ट and he runs like the wind. Both sentences have the same meaning, but the second sentence looks more beautiful, more rich than the first one. So, what is the function of these figures of speech? The function of these figures of speech is to decorate the language. They add color and interest in the writing. And figure of speech also help us to understand the meaning of the text fast. Students, there are lots of figures of speech in literature, in English literature as well as in Urdu literature. But here we will discuss only those figures of speech which are commonly used by the writers. And the most commonly used figure of speech is simile. Students, simile को उर्दू में तशबीह कहते हैं। तशबीह का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार देना। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो बज़ाहिर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनको एक उनकी क्वालिटी की बेस पर, वो क्वालिटी जो उन दोनों में कॉमन होती है, उसकी बेस पर जब हम कंपेयर करते हैं तो ये सिमिली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं हसन शेर की तरह बहादुर है, तो हसन और शेर तो ये दोनों टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इंसान है और एक जानवर है, बट हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं किस वजह से? ऑन द बेसिस ऑफ द सेम क्वालिटी। एंड व्हाट इज दैट सेम क्वालिटी? द ब्रेवरी। सो लुक एट द डेफिनेशन। A simile is a figure of speech that directly compares two unlike things. To make the comparison, similes most often use the connecting words like or as. सिमिली में हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेम क्वालिटी, एंड वी यूज कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एंड as cool as cucumber, as wise as owl, as beautiful as rose, as white as snow. These are all similes, and the function of simile is to add richness to the text. Look at this sentence. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Here, life is being compared with the candle in the wind on the basis of same quality. What is the same quality? The hardships. In life, we have to face lot of hardships. और candle of the in the wind, candle भी जब wind में जलती है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है in order to continue. तो स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। Here, the poet is comparing the lips of his beloved with the petals of rose. एक लड़की के होंठों को गुलाब की पत्तियों से तशबीह दी जा रही है, किस वजह से? ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वालिटी। और सेम क्वालिटी इसमें क्या है? डेलिकेसी, नज़ाकत। दोनों में नज़ाकत जो है वो कॉमन है, इसलिए शायर अपनी महबूबा के लिप्स को पेटल्स ऑफ रोज से कंपेयर कर रहा है। तो दिस इज सिमिली। नेक्स्ट,
important figure of speech is metaphor. Metaphor is also a figure of speech which is basing on comparison. कंपैरिजन पे ये बेस करती है जैसे कि सिमिली बेस करती है, लेकिन इसमें कंपैरिजन जो होता है उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। इसमें भी हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं उनकी किसी एक खसूसियत की बुनियाद पे जो कि कॉमन होती है, लेकिन इसमें हम लोग हरगिज भी कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक और एज यूज नहीं करते। वन मोर थिंग, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पूरे का पूरा बोरो कर लेते हैं। मेटाफर को उर्दू में इस्तारा कहते हैं। इसका मतलब होता है टू बोरो समथिंग। So, a metaphor is a figure of speech that is used to make comparison between two things that are not like but do have something in common. So, in metaphor, we take the whole object for the sake of other object. So, students, I give you the example. If I say that he fought like a lion in the battlefield, here I am using simile. If I say that he was a lion in battlefield, आई एम यूजिंग मेटाफर। अगर मैं ये कहती हूँ कि वो मैदान जंग में शेर की तरह लड़ा, तो फिर इसमें मैंने सिमिली यूज किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो मैदान जंग में शेर था, तो ये मेटाफर है। हम मेटाफर में हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ओन कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। लुक एट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। माई फ्रेंड इज अ शेक्सपियर व्हेन इन क्लास, इन इंग्लिश क्लास। हियर इफ आई से दैट माई फ्रेंड इज लाइक शेक्सपियर, तो इसका मतलब है कि मैंने सिमिली यूज की है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि माई फ्रेंड इज अ शेक्सपियर, तो मैंने शेक्सपियर की पूरी पर्सनैलिटी को ओन कर लिया फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंड, तो मैं मेटाफर यूज कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, एक नात है। आंखें ठंडी हों, जिगर तारे हों, जाने से राग, सच्चे सूरज वो दिल आ रहा है उजाला तेरा। सच्चे सूरज, यहाँ पे सच्चे सूरज एक मेटाफर यूज हुआ है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सो दिस इज हाउ मेटाफर इज यूज्ड। वन मोर एग्जाम्पल, एक वर्स है उर्दू का। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। गुल, कौन है गुल इसमें? गुल शायर अपने महबूब को कह रहा है, तो इसका मतलब है कि गुल एक फूल को पूरे का पूरा आप फॉर द सेक ऑफ द बिलवड ओन कर रहे हो, तो ये मेटाफर है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को उर्दू में तजसीम कहते हैं, यानी कि किसी चीज को शख्सियत अता कर देना, जिस्म अता कर देना, सो दैट वो परफॉर्म कर सके कोई कुछ। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन में हम ऑब्जेक्ट्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, डेड ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल्स को, आइडियाज को हम पर्सोनिफाई करते हैं, शख्सियत अता कर देते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ठंडी ठंडी हवा में फूल डांस कर रहे हैं। फूल डांस नहीं करते, लेकिन हम लोग उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ personification is used. Look at these examples. Opportunities knocked at his door. Opportunity knocked at his door. How opportunity can knock? But here opportunity is being personified. The sun greeted me this morning. How sun can greet? Sun is being personified here. The sky was full of dancing stars. Dancing stars are personification. So here, the radio suddenly stopped singing and stared at me. How radio can stare? Stared is personification. The sun played hide and seek with the clouds. Sun played hide and seek. How sun can play? Here, sun is being personified. And one more example from Urdu poetry. नासिर काज़मी का शेर है। हमारे घर की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है।
Udasi is an idea. Uh, it is an abstract noun. So it is being personified here. उदासी कैसे सोती है, उदासी बाल कैसे खोलती है, ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हम आइडिया को किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को किसी इनएनिमेट चीज़ को जब ये करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन होती है. एंड पर्सोनिफिकेशन इज commonly used in poetry. The next is, students, pun. Pun is actually play with words. पन को हम उर्दू में इब्हाम गोई भी कहते हैं. मुबहिम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिनका मीनिंग एक से ज़्यादा हो, जिसका कुछ से कुछ मीनिंग निकल सके. लिखने वाला कुछ और सोच के लिखे, लेकिन पढ़ने वाला उसका कुछ और लफ्ज़ उसका कुछ और जो है वो मीनिंग ले, या बोलने वाला कुछ और बोले लेकिन सुनने वाला कुछ और मीनिंग ले. दिस इज कॉल्ड पन. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्ले विद वर्ड्स. पन क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू क्रिएट ह्यूमर इन द टेक्स्ट, और इट इज ऑल्सो यूज टू definitely make the text rich. Look at the definition. A humorous way of using words or phrases that more than one words are suggested. ह्यूमरस वे में वर्ड्स को यूज करना, इस तरह से यूज करना कि एक लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग सजेस्ट किए जा सके. फॉर एग्जाम्पल, अ कोबलर इज मेंडर ऑफ बैड सोल्स. हियर बैड सोल्स हैविंग टू मीनिंग्स. आवर मिनिस्टर लाइज अब्रॉड. हियर लाइज हैविंग टू मीनिंग्स. सो जू मानी लफ्जों का इस्तेमाल करना पन कहलाता है. इससे ह्यूमरस इफेक्ट भी आता है, और इसके अलावा इससे चालाकी और फ्रेब का पहलू भी आता है. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल फ्रॉम उर्दू पोइट्री. जी, मोमिन खान मोमिन का शेर है. शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके. अब यहाँ पे खुदा खुदा करके जो है एज अ पन यूज हुआ है लफ्ज, क्योंकि खुदा खुदा करके के दो मीनिंग्स होते हैं. एक तो ये कि खुदा खुदा करके ये काम हुआ है यानी कि बहुत मुश्किल से, और दूसरा खुदा खुदा करना का मतलब होता है टू टू एंगेज योर सेल्फ इन रिलीजियस एक्टिविटीज. या तो उस बंदे ने इबादत में रात गुजारी है या उसने बहुत मुश्किल से गुजारी है. इट इज अप टू यू कि आप क्या नतीजा, क्या मीनिंग अख्ज करते हो इन वर्ड से. सो दिस इज फन, प्लेइंग विद वर्ड्स. नेक्स्ट इज hyperbole. Students, hyperbole is an exaggerated statement. इसमें स्टेटमेंट को, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है. और बढ़ा चढ़ा के क्यों बयान किया जाता है? इन ऑर्डर टू क्रिएट इम्फेटिक इफेक्ट, किसी चीज को जोर देने के लिए. और इसके अलावा इससे क्या इफेक्ट क्रिएट होता है? इससे रिडिकुलस और फनी इफेक्ट क्रिएट होता है. किसी को किसी चीज को बहुत ज्यादा फोकस करने में भी ये यूज होता है. इसके अलावा इसे फनी और रिडिकुलस इफेक्ट भी क्रिएट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि ऐसा मत करो, तो 1000 दफा कोई भी शख्स 1000 दफा तो नहीं कह सकता. हियर आई एम एग्जैजरेटेड द स्टेटमेंट. hyperbole is used. Look at these examples. You snore louder than the freight train. I have told you 100 times. I had to walk 15 miles to school in the snow. You could have knocked me over with a feather. तो स्टूडेंट्स, हाइपरबोले भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फिगर ऑफ स्पीच लिटरेचर में, और ये पोइट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. जैसे एक शेर है कि आई थिंक मिर्ज़ा गालिब का ही शेर है. हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक. हेयर hyperbole is used, exaggerated statement यूज हुई है कि महबूब तक खबर जाने तक तो शायर मर भी चुका होगा और उसकी हड्डियां गल सड़ के खाक में मिल चुकी होंगी, बिल्कुल वो खाक हो चुका होगा. तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? यहाँ पे hyperbole यूज हुआ है. hyperbole क्यों यूज होता है? टू क्रिएट इम्फेटिक इफेक्ट, जोर देने के लिए किसी चीज पे, रिडिकुलस या फनी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, or definitely in order to add richness to the poetry or text.
So the next is symbolism. स्टूडेंट, सिंबलिज्म का मतलब होता है अलामत का इस्तेमाल करना किसी चीज की। अलामत का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? अलामत किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी और चीज की निशानदही करती है। जब हम किसी एक चीज को किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं तो ये अलामत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, फाख्ता अमन की अलामत होती है। फॉर एग्जाम्पल, सफेद कलर जो है वो पाकीज़गी की अलामत होता है। So this is how symbolism is used. A symbol is something that is represented by something else. सिंबल एक ऐसी चीज होती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग एल्स, वो किसी और से रिप्रेजेंट की जाती है। अ सिंबल इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड्स फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, person or idea. So symbolism is the representation of one thing for another using a person, object or idea. Students, सिंबलिज्म एक्चुअली मोस्टली यूज कैसे की जाती है कि एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करे, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डव इज अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, इट इज सिंबलाइजेस द पीस। इसी तरह व्हाइट कलर सिंबलाइजेस द प्योरिटी। इसी तरह डे symbolizes the hope, night symbolizes the pessimism. So all these symbols are used in the text or in poetry. Look at this example. All the words are stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. This piece of text has been taken from William Shakespeare's play As You Like It. Here, entrance and exit are the symbols, are the symbols of life and uh, are the symbols of death and birth. Entrance is a symbol of birth, and exit is the symbol of death, and stage is a symbol of life. So this piece of text is full of symbolism. Next is metonymy. Metonymy is a figure of speech that replaces the name of a thing with the name of something else. Something else with which it is closely associated. मेटोनिमी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम एक चीज के नेम को दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन। उन दो चीजों में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है जिसकी वजह से हम एक चीज को दूसरे के नेम के साथ रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड डिसाइड्स टू कीप चेक ऑन इमिग्रेशन। हियर इंग्लैंड रेफर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में, इंग्लैंड की गवर्नमेंट में और इंग्लैंड में एक क्लोज एसोसिएशन है जिसकी वजह से इन दोनों को रिप्लेस किया गया है। द नेक्स्ट इज द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन refers to the written words and sword to military force. And the next is, let me give you a hand. Here hand means help, not really hand mean the actual hand means help. The next is apostrophe. Students, apostrophe एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक राइटर और स्पीकर एक ऐसी चीज के साथ मुखातिब होता है, एक ऐसी चीज के साथ बात करता है विच इज नॉट प्रेजेंट, जो एब्सेंट होती है, जो डेड होती है, जो उसकी बात सुन नहीं सकती, जो उससे बात कर नहीं सकती। इस तरह से वो राइटर ऐसी चीज से बात करता है जैसे वो उसकी बात सुन भी रही है और वो उससे रिस्पॉन्स भी ले रहा है। तो दिस इज कॉल्ड apostrophe. Look at this definition. A writer speaks directly to someone who is not present or is dead or speaks to an inanimate object. स्टूडेंट्स, apostrophe की एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। Here, a kid is talking to a star which is not present. स्टार बच्चे के सामने नहीं है लेकिन बच्चा उसे कह रहा है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो एपोस्ट्रॉफी एक ऐसी चीज से बात करना होता है जो इनएनिमेट होती है,
जो एब्सेंट होती है और वो सामने नहीं होती है, लेकिन पोइट या राइटर ऐसे ही बात करता है जैसे वो उसके सामने है। एक पोएम है विच इज रिटन बाय अमजद इस्लाम अमजद। वो कहते हैं कि हिज्र के महताब सुन, हम भी है तेरे हम सफ़र, हमसे भी कोई बात कर, हम तो तेरे रफ़ीक हैं, हमसे ना इज्तनाब कर, दश्ते फरा के यार में अजलों के हम रकाब सुन। सुन किसको कहा जा रहा है? महताब को। महताब कैसे सुन सकता है? हाउ कैन मून लिसन? तो यहाँ पे मून जो प्रेजेंट नहीं है उसके सामने, जो इनएनिमेट है, वो उसको एड्रेस कर रहा है पोइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पोइट्री कि इसमें इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, बिल्कुल जो अनबिलीवेबल वे में। तो look at this definition, look at this example. Mary Shelley uses apostrophe in her novel Frankenstein. Mary Shelley, who was wife of Percy Bysshe Shelley, the very famous romantic poet, uh, she wrote that, "O stars and clouds and winds, you are all about to mock me. If you really pity me, crush sensation and memory. Let me become as naught, but if not, depart, depart, and leave me in darkness." Here, the character of the novel is addressing to these three things: stars, clouds, and winds. Definitely, these are inanimate और एब्सेंट थिंग्स, लेकिन वो उनसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है कि जैसे वो उसके सामने बैठे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, इस तरह से वो इनसे मुखातिब हो रहा है। तो दिस इज हाउ एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड इन लिटरेचर। एंड this was all about most commonly used figure of speech. So my next lecture will be about musical devices which are commonly used in poetry in order to enhance the music of the poetry, in order to enhance the rhythm of the poetry. तो बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज टर्म्स, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इस चीज़ को समझ सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।